آج کا ہمارا مضمون ہے ہماری بیٹیاں ہمارا اثاثہ ہے۔ کیا مضمون ہے جی؟ بھائیوں کی آواز نہیں آئی۔ بھائیوں، ہماری بیٹیاں ہمارا کیا ہے جی؟ اثاثہ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جو اس وقت کلیسا پاکستان میں بڑا ایک اہم موضوع چل رہا ہے، ماریا شباز کیس کا، کتنے بہن بھائی اس سے واقف نہیں ہیں؟ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ہے کہ کلیسا پاکستان جاگ رہی ہے، اور آپ لوگ خوب اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ تقریباً پچھلے 1-1.5 ماہ سے کلیسا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ ہر مسیحی اپنے اندر آگ رکھے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ کیوں؟ آپ لوگ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے ہماری آئینی عدالت نے اس بات کا فیصلہ ہماری کلیسا پاکستان کے خلاف کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے اہل کتاب کی نابالغ بچوں سے شادی کرنا ہمیں جائز ہے۔ اگر میں سادہ الفاظ میں اور کلیئر کر دوں کہ یہ قانون، یہ فیصلہ جو میرے اور آپ لوگوں کے لیے یا کلیسا پاکستان کے لیے کیا گیا ہے، یہ کلیسا پاکستان کی نسل کشی ہے۔ حقیقت میں یہ کلیسا پاکستان کی کیا ہے جی؟ نسل کشی ہے، تاکہ مسیحوں کی نسل اس کلیسا پاکستان سے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری باتیں شاید آج جب میں کروں گا بہت سارے بہن بھائیوں کو بری بھی لگیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو بھی ہیں۔ اور شاید اب آپ کو یاد ہو، لینٹ ڈیز میں میں نے آستر کی سارے واقعے پر آپ لوگوں کا دھیان لگایا تھا۔ کتنے بہن بھائیوں کو یاد ہے آستر کا سارا واقعہ؟ بہنوں کو یاد ہے؟ بھائی تھینک یو، آپ روٹین میں ہیں، نو پرابلم۔ مشکل بھی ہوتا ہے خدا ان کے کلام کو یاد کرنا، آئی انڈرسٹینڈ اٹ۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس وقت میں نے یہ ساری باتیں دہرائی تھیں کہ اس وقت یہودیوں کی بھی نسل کشی کا فیصلہ بادشاہ سلامت کی طرف سے آ چکا تھا کہ یہودیوں کی نسل کو اس ملک سے، اس ملک سے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور پھر اس کا حل کیا نکلا تھا؟ ہمدان نے ساری پلاننگ کی کہ یہودیوں کی نسل کشی کی جائے۔ اور میں بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں نے، آستر ملکہ نے جو محل پہ بیٹھی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ اپنی قوم کے لیے کیا کیا تھا جی؟ تھینک یو۔ جب دعا اور روزے میں ٹھہر گئے تو خداوند وہ جو فیصلہ بادشاہ سلامت نے کیا تھا اور جس کی ساری پلاننگ تھی، دعا اور روزے کا، یہ اس کا ڈیسیژن لیا گیا
کہ جو ساری پلاننگ کر رہا تھا ہمدان، اسی کو صلیب پر لٹکا دیا گیا. اور اس لیے جس طریقے سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ میں اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہوں کہ کلیسیا پاکستان جاگ رہی ہے اور اس بات سے واقف ہے کہ میرے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگ اپنے اندر خوف رکھ لیں اور میں آپ لوگ اس ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیں اور اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالیں اپنے ملک کے لیے، یا بعض اوقات ہم غصے میں آ کر یہ بھی کہتے ہیں مجھے خدا نے یہاں پیدا کیوں کیا. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، خدا نے اگر مجھے آپ لوگوں کو ملک پاکستان میں پیدا کیا ہے نا، اس کا ایک خاص مقصد تھا، اس کا ایک خاص مقصد ہے. خداوند اگر چاہتا تو آپ کو افغانستان کے اندر بھی پیدا کر سکتا تھا، افریقہ کے ایک غریب سے غریب تر ملک کے اندر بھی پیدا کر سکتا تھا. کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ خدا نے مجھے آپ لوگوں کو مسیحی خاندانوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے آپ لوگوں کو نور بنا کر، نمک بنا کر اس ملک پاکستان میں رکھا ہوا ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خداوند سے بھی جھگڑنا شروع کر دیں، ہم حکومت سے بھی عداوت رکھنا شروع کر دیں. اس کا حل کیا ہے؟ دعا. حل کیا ہے جی؟ کیونکہ راس باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیے گا امثال کی کتاب پرووربس چیپٹر 22. اس آیت سے میں آپ لوگ زبانی بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. امثال 22 باب اور اس کی 6 آیت، پرووربس چیپٹر 22 ورس 6. 22 باب اور اس کی 6 آیت. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جائے، اس کی برکت ہو، آمین. آئیں اسی آیت کو ذرا میرے پیچھے دہرا دیجئے گا تاکہ میں آپ لوگ جب بلند آواز کے ساتھ اس آیت کو دہرا سکیں. لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. آمین. میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ اتنی خوبصورت آیت، میں آپ لوگ سارے اس آیت سے واقف ہیں، اتنی خوبصورت آیت ہمارے پاک کلام کی ہے. لیکن افسوس، اب میں معافی چاہتا ہوں، ہماری کلیسیا پاکستان اس آیت کو عمل کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی مشہور کہاوت ہے یہ کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی ماں کون سی کاؤنٹ کی جاتی ہے جی؟ تھینک یو. پوری دنیا میں سب سے اچھی ماں جو سی کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ایک یہودی ماں ہوتی ہے.
یہودی ماں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر کیا ڈال دیتی ہے جی؟ شریعت بھی اس کے اندر ڈال دیتی ہے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس طریقے سے ان کے اندر اولاد کے اندر ڈال دیا جاتا, اس طریقے سے ان کے لیے حکم تھا کہ تم نے وہ جو مین حکم ہے, تو خدا نے اپنے خدا سے اپنے پوری دل, اپنے پوری جان, پوری عقل سے محبت رکھ. کلام میں لکھا ہے اس کو کیا کہا جی؟ تو اٹھتے بیٹھتے تو اس کو یاد رکھ. آپ کی دروازوں کی چوکھٹوں پر, اندر آتے وقت, باہر جاتے وقت, ہر جگہ پہ یہ چیز لگی ہو تاکہ ہماری اولاد جب گھر سے باہر جائے تب بھی اس بات کو ذہن رکھے کہ میں نے خدا سے محبت کری ہے. جب اندر انٹر ہو تب بھی اس بات کو یاد رکھے گے کہ میں نے خدا سے محبت رکھی ہے. اس لیے یہودی ماں پوری دنیا میں سب سے اچھی ماں کاؤنٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد یہودی ماں کے بعد ایک مسلم ماں بڑی اچھی کاؤنٹ کی جاتی ہے. میں اور آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اور آپ لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں یہ میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے گھر میں, اب سنیے گا, ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہے وہ مسلم ہے, اور اس کی باتیں سن کے یقین کریں ہم دونوں میاں بیوی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ جی انکل میں نے اپنی بچی کو سردی ہو گرمی ہو صبح 5 بجے اٹھا دینا ہے اور پارا اس کو دے کر اس کو میں نے مدرسے بھیج دینا ہے. اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہماری کلیسیا پاکستان کہاں کھڑی ہے. اس لیے میں نے آغاز میں کہا تھا ہاں آج شاید میری باتیں آپ لوگوں کو بڑی سخت لگیں گی اور آپ بہت باتوں کو آپ مائنڈ بھی کریں گے, لیکن اچھی بات ہے ہم پہلے مائنڈ کر دیں اس سے پہلے کہ ہماری نسل کشی اور زیادہ ہونا شروع ہو جائے. میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری کلیسیا پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی خود ہم کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہو, زیادہ ہو سکتی ہے. تھینک یو. اس میں سے جتنی تعداد نہیں آتی اس میں سے میجورٹی تعداد کی ہے ہمارے نوجوان بیٹیاں اور نوجوان بیٹے. کیوں؟ خداوند کے گھر میں آنا پسند نہیں, خداوند کے کلام کو سننا پسند نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا نہیں. اگر ہم اب بھی نہ ہوش سنبھالے تو خدا را ہم لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے. میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس موضوع پر ہر چرچ میں تعلیم دی جا رہی ہے.
اور بعد میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ بعد میں کیونکہ ہماری آدم و حوا سے ہماری عادت بنی ہے، ہم نے اپنے اوپر تو کوئی الزام لینا نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے پہ ڈالنا ہوتا ہے، اور بعد میں بڑا ایزی ہم وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پادریوں نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ پادریوں کی غلطی، پادریوں نے کبھی تعلیم دی نہیں۔ تو کبھی بھی اپنے اندر بھی جھانک کر ہم دیکھ لیں، ہمارا نوجوان طبقہ تو خدا کے گھر میں آنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ کیسے کہے گا کہ مجھے پادری صاحب نے بتایا نہیں؟ ہاں وہ تو یوٹیوب پر خدا کا کلام بھی سنا پسند نہیں کرے گا، اتنا 1 گھنٹے کا پیغام کون سنے؟ ایسو چنگا میں کوئی ڈرامہ دیکھ لوں، وہ ڈرامے میں اس نے وہ لڑکے نے لے کے بھاگ رہا تھا، پتہ نہیں لے کے بھاگا کہ نہیں بھاگا ابھی تک میں وہ تو اس کا اینڈ دیکھوں اس کا کیا بنا۔ کون 1 گھنٹہ خدا کے کلام کو سنے گا؟ میری بہنوں، میری بھائیوں، میری بچوں، میری بیٹیوں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ لیں، خداوند کا کلام ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم غیر اقوام میں شادی کریں۔ اور شاید آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں یا نہیں، یہ میرے آپ لوگ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ بن چکا ہوا ہے کہ جب سے یہ ماریا شباز کا کیس آیا، کم از کم 1-1.5 ماہ ہو گئے، نہیں صحیح ہوا ہے وقت، 1-1.5 ماہ کے اندر آپ کو پتہ ہے اس کے منفی اثرات کلیسیا پاکستان پر کیا کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ تک کم از کم 13 سے 14 بچیوں کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے۔ 13 سے 1-1.5 ماہ کے اندر اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہماری 13 سے 14 اب تک یہ کیسز ایسے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں کہ ہماری بچیوں کو، نابالغ بچیوں کو زبردستی ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف یہاں نہیں ہے، سنیے گا، یہ صرف یہاں نہیں ہے، آپ اندرون سندھ چلے جائیں، وہاں ہندوؤں کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ یہی حال ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سے بھی کم تر ہیں بیچارے۔ ان کے ساتھ تو یہ کیا جاتا ہے، کوئی ان کو، وہ ذمہ دار کو، وڈیرے کو کوئی بچی اچھی لگ جائے وہ اس کو زبردستی اغوا کرتے، اس کو دھمکی دی جاتی کہ اگر تو نے اپنی زبان کھولی تو ہم تیرے ماں باپ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ بیچارے ان کے زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ چیز آہستہ 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 اب مجھ پر اور آپ پر بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بولیے گا حل کیا ہے؟ حل کے ٹائم سارے خاموش ہو گئے نہیں۔ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ صرف اور صرف مشکل سے 10 لوگوں کی آواز ہے، باقی کہنے پیسہ ختم کرو، ہم نے گھر جانا ہے، بھوک لگی ہے۔ حل کیا اس کا؟ جانے دیں، ایسے کام ہونے دیں۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہماری نسل کشی ہوتی جائے؟ ہرگز نہیں۔ کلام میں بن سے دھیان سے سنیے گا میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ خدا کا کلام ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ 1-2 حوالے جات میں بن سے سن لیجیے گا۔
आए में से निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब और उसका 7वां बाब, डिटरोनॉमी चैप्टर 7 और उसकी दूसरी आयत से मैं से जरा देखिएगा। लिखे, और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मारे, किनको? दूसरी कौमों को, गैर कौम को। क्या लिखे? उनको मारे, तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डाला। आगे सुनिएगा, तू उनसे कोई ऐद, तू उनसे कोई ऐद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। तीसरी आयत सुनिएगा, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बर्गश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूं खुदा का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। इजाजत है कलाम में? आवाज अभी भी कम है। क्या इजाजत है मेरी बेटियों? क्या इजाजत है मेरे नौजवानों? अगर आप इसके बाद चाहे यूट्यूब पे पैगाम सुने, क्या इजाजत है? हरगिज इस बात की इजाजत नहीं है। एक और हवाला में सर देखिएगा, यशुआ की किताब, इस्तिस्ना के बाद इससे अगली किताब यशुआ, उसका 23 बाब। अब ये अल्फाज उस वक्त के हैं जब यशुआ इस दुनिया से जाने को था, और क्या अल्फाज बोले सुनेगा। उसकी 12वीं आयत से लिखे है, वरना अगर तुम किसी तरह से बर्गश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, क्या लफ्ज लिखा हुआ जी? क्या लफ्ज लिखा हुआ जी? बेटियों इधर की मतलब भाई, उसका क्या मतलब है? इनसे इतना ना बता लेना। लिखा है, दरमियानी बाकी हैं वो शेर और शक्कर हो जाओ और उनके साथ क्या करो जी? ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावन तुम्हारा खुदा फिर उन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगे, यहां तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओ। अब सुनिएगा, ये जो हम लोग इतने खुल में जाते हैं ना, अब सुनिएगा जरा खास बात। शायद मैं सोचता हूं कि शायद ये जो हमारी कलीसिया पाकिस्तान है ना, ये आज तक अपने अंदर सांसे कमतरी का शिकार है। कलीसिया पाकिस्तान ने आज तक ना तो अपनी शख्सियत को पहचाना, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को बात बुरी लगे, ना आज तक कलीसिया पाकिस्तान ने अपनी शख्सियत को पहचाना, ना अपने आप को पहचाना, हमारा मकाम क्या है, हमारी क्या शख्सियत है। इसलिए हम इतने सांसे कमतरी के शिकार लोग हो जाते हैं, हर चमकती हुई चीज को सोना समझ के उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, मुझे किसी तरीके से मिल जाए।
मिसाल के तौर पर कोई पैसे वाला देख ले, वाह या उसके पास कितना पैसा है। किसी की बड़ी गाड़ी देख रहे तब हम इतने साल से कंपनी के शिकार लोग हो जाते हैं। और मेरी बेटियों और मेरे बच्चों, यही उनका जाल है, यही उनका जाल है। क्योंकि शायद हमने अपनी हैसियत को पहचाने नहीं है। आप लोग क्या हम लोग ये है, मैं तो कदी ये चीज वड्डी गड्डी ते वेखी नहीं, मैं तो कदी बह के नहीं वेख्या। वो मुझे कह रहा आई लव यू, तो चंगा नहीं मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ जाऊं। मैं माफी चाहता हूं मेरी बेटियों। आपको याद है डॉक्टर जाकिर कैसर ने लास्ट संडे क्या बोला था? बोल दे, एक जुम्मा ने बोला था कि अपनी बीवियों को आई लव यू बोला करें। बोल गए क्या? याद है? देख रहे अपनी गल तो सौंप भूल गए जी। याद है कि नहीं याद है? उन्होंने क्या कहा था? अपनी बीवियों को क्या बोलना जी? आई लव यू बोला करें। मैं हकीकत कह रहा हूं, अपनी बेटियों को भी, अपनी बीवियों को भी, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को आई लव यू बोला करें, इससे पहले कि कोई और बोल दे। मैं पहले कहा हम लोग इतने एहसास कंपनी का शिकार जो होते हैं अपनी जिंदगी में, कोशिश करते हैं मेरे उनके साथ जरा ताल्लुकात बन जाएं और बड़े फख्र से बताते हैं मेरे ताल्लुकात उसके साथ हैं। फिर उसी को कहते हैं घर में आजा जरा। बेटी को कहते हैं ये तेरा चाचा ही पुत्र चाय पिला, वो फिर अपनी चाय पिलाता है। और अपनी बीवी को कहते हैं खाना खिला, तेरा देवर आई, खलास को खाना, वो अच्छा खाना खिलाता है। फिर इतना ऐसा से कंपनी का शिकार मत हो जाएं, किसी से इतना जल्दी हो जाते हैं। और मैं कई दफा आपको मैं थोड़ा समझाने के लिए, साड़ी ते पुलिस है पाकिस्तान की यह हालत है, अगर कोई गोरा कलाम सुनाने वास्ते वो पीछे पागल हो जाने। और मैं एक लतीफा सुनाता हूं तो आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए, थोड़ा सा आप खुश हो जाए, आप काफी टेंस हो गए। मैं एक लतीफा सुनाता होता हूं अक्सर। मैं कहता होता हूं कि अगर हम कहें ना, पाकिस्तानी खादम कहें खुदा मोहब्बत है, तो शायद सानू भी पता है पादी साहब। तो गोरा कहेगा गॉड इज लव, तो नाल ही तालियां बजने शुरू हो जाएंगी। है मेरे साथ से कंपनी के शिकार लोग। पाकिस्तानी ने तो उन्हें कोई गलत दूसरी की थी है, उसकी बात वो की है, उसी टाइम है गॉड इज लव, वसी हाउ वंडरफुल, क्या उसने भेद की बात कर दी। तो असी कहते रहिए, क्यों भाई नादर, असी कहते रहिए खुदा मोहब्बत है, वो कहेंगे सानू भी पता पाए सब कहीं वो नवी गल है। हाँ कोई गोरा कहा वंडरफुल, क्यों? हमारी कोई अपनी पहचान है या नहीं है? मुझे बोलिए यार, हमारी अपनी पहचान है या नहीं है? हमारी अपनी कोई शख्सियत है या नहीं है? हमारी क्या पहचान शख्सियत है? क्या कलाम हमें मेरे आपके बारे में क्या कहता है? तुम सदा कहनो का फेंका मुकद्दस कौम, खामोश हो गए। मैं सब बोलिएगा, तुम सदा कहनो का फेंका मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया! क्या खुदा की मलकियत है? तो फिर जो सासे
कम से क्यों पागल हो जाते, लोगों का पैसा देख के, लोगों की गड्डियां देख के, चुट्टी चमड़ी देख के क्यों हम पागल हो जाते हैं? इतने हम इस साथ से कम से शिकार लोग हैं, हमें पता नहीं हमारी पहचान क्या है। हाँ, उसके साथ ही शिकवे। साथ ही मुझे एक वाकया याद आ गया, सुनिएगा। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, गालबन शायद 2 या 3 साल की थी। अब तो मुझे कब, इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं। मैं, वाइफ और बेटी ना, उसको हमने मोटरसाइकिल पे आगे बैठाया, पता नहीं हम कहीं डिफेंस में किसी के घर में गए, बहुत बड़ा घर था, कोई मैं 5 या 6 गड्डियां खलोती हुई सन। अच्छा, जब वापस आए तो मेरी बेटी मुझे कहती, पापा इनका कितना बड़ा घर है। मैं कहा जी बेटा। पापा हमारा घर छोटा सा है। पापा देखा इनके घर में कितनी गाड़ी है, हमारे पास तो एक भी गाड़ी नहीं है। उसी वक्त चलते चलते हम दोनों मियां बीवी ने यह फैसला किया, बेटी के जहन को अभी से इसको वॉश करना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा, अब सुनिएगा, मैंने कहा बेटा हमारे पास इतनी गाड़ियां नहीं है ना? कहती नहीं पापा। मैं कहा हमारे पास इतना घर नहीं है ना? नहीं पापा। मैं कहा बेटा लेकिन इससे भरकर जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। कहती पापा वो क्या? मैं कहा बेटा हमारे पास जीसस है, जो इनके पास जीसस नहीं है, और आपको पता है जीसस ही सब कुछ है, तो इसी से वो खुश होगी। तो इसलिए मैं बात में बेटियों, कभी चमकती चीज को सोना समझ के पागल नहीं हो जाना कि मोनू थे मेरे घर में कभी आई लव यू बोला नहीं, उस गड्डी वाली मोनू आई लव यू बोले चल गए। उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा आई लव यू, तब मैं भी जवाब दूं कि ना सुना है। फिर क्या होता है? नस्ल कशी, नस्ल कशी, नस्ल कशी। एक हवाला मेरे भाई से ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहरा दीजिएगा, आप लोगों की हैसियत और मकाम क्या है जरा। सुनिएगा। पता है एक्चुअली आप लोग शायद इस बात को पसंद नहीं करते होंगे, भाई साहब क्यों बार बार दोहराते हैं। मकसद मेरे अंदर सिर्फ ये होता है कि बार बार आप ऊंची आवाज में बोलें ताकि वो चीजें आपके अंदर आपके कान सुनेंगे ना, वो आपके अंदर सरायत का जाए। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं। तुम सदा कहनो का फेंका मोदी आगे, मैं तुम पर आज मुझे याद नहीं था आगे क्या लिखा जी, मैं पीछे बोल दीजिएगा क्योंकि आपको यूं खुदा का कलाम याद करना मुश्किल है। तुम सदा कहनो का फेंका मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मर्जियत है। अब बोले मैं सदा कहनो का फेंका मुकद्दस कौम, मैं ऐसी उम्मत हूं जो खुदा की खास मर्जियत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कोई मेरी बेटियों आपको कोई चमकती चीज अच्छी लगे तो एक आयत हमेशा याद रखेगा, मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। सुनिएगा, अब जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत। क्योंकि फिर आप याद है हमारी हैसियत क्या है, पहचान क्या है हमारी, उसको याद रख के ये अल्फाज हैं। सुनिएगा, मैं जल्द आने वाला हूं।
जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हमारे पास क्या जी? बोलिए कि आपके पास क्या है? आपके पास आसमान और जमीन का खालिक और मालिक आपके पास है या नहीं है? हालेलुया। इसे कहते हैं मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, जाना दे इसे। जब फिर मैं अपना दो साहब के लिए साहब पढ़ देता हूं, लिखा है जी, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। ठीक है मेरी बेटियों, आपका कोई ताज ना छीन ले, क्योंकि हमेशा याद रखो आप लोग सुधार कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। एक और बड़ा ऐसे मौकों पे ना सुनिएगा, जब गैर कौम की बेटी या बेटा पसंद आ जाए, सेकंड साइड से बड़ी अच्छी खूबसूरत पेशकश आती है और हम अपने माँ बाप को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश करती हैं, नहीं पापा वो कह रही है या वो कह रहा है कि हम ईमान को नहीं छेड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं? हम ईमान को नहीं छेड़ेंगे। तो सारी उम्र अपने ईमान के साथ रही, मैं अपने ईमान के साथ। पेशकश अच्छी है कि बुरी है? नहीं वैसे बताएंगे अच्छी पेशकश है। फिर वही बात, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सुनिएगा सुनिएगा, जब ये पेशकश की जाती है और हमारी बेटियां अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को इस बात पर रजामंद करते हैं कि नहीं ये काम होने दें, ये काम होने दें, तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मुझे एक बात का जवाब दे दे, क्या कलाम के मुताबिक, मलाकी के मुताबिक, क्या जो औलाद पैदा होगी क्या वो खुदा तस नस्ल पैदा होगी? हरगिज़ नहीं, वो औलाद खुदा तस नस्ल नहीं होगी, वो लानती औलाद होगी। तो ले ले अपने लिए लानत ले ले। जो हम लोग बड़ी उम्र के ना, वो इस आप लोग सारे इस बात से वाकिफ हैं, जो हम लोग बड़ी उम्र के हैं, शायद इन नौजवानों को इस बात ना, क्योंकि इनके लिए बड़ी अच्छी लगती है ये बातें। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनी बेशुमार बेटियों को उस तरफ जाते देखा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? लेकिन आज तक इस उम्र में मैंने आज तक किसी अपनी ऐसी बहन को उसके घर में खुश नहीं देखा। याद रखिएगा बेटियों, अभी तो किसी का आई लव यू कहना बड़ा अच्छा लगता है, साल बाद आई लव यू खत्म हो जाएगा, फिर वही होगा तू तो चूड़ी है। मैं पहले कहा था मेरे अल्फाज शायद आप लोगों को बुरे लगे, अब ये चीज कलाम में बड़ी खूबसूरत एक हमें एक एग्जांपल मिलती है। अच्छा पहले इस बात को देख लें कि ये जो पेशकश की जाती है
एक ईमानदार बेटी के लिए, सुनिएगा बेटियों, ईमानदार बेटी जो अभी ये बड़ी जोर से ये कह रही है कि मैं सरदार कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मतों जो खुदा की खास मिल्कियत है, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा का काम कर है। लेकिन अगर बगैरता होके ऐसा कदम उठा लिया गया तो सुनिएगा फिर ऐसी बहनों के लिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। मैं सब निकालिएगा इब्रानियों का खत 6 बाब और उसकी 4 आयत से मैं तलावत करने के हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और बेटियों वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कौमों का जायका ले चुके, ये किसके लिए है? एक ईमानदार बच्ची के लिए कि वो उस खुदाम की सारी ब्लेसिंग्स को ले चुकी है। और आगे क्या लिखा जी 6 आयत सुनिएगा। जब इतनी ब्लेसिंग्स के बाद, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, खुदा का कलाम क्या कहता है? 6 आयत, अगर वो क्या लिखा है जी, अगर वो बगैरता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना। आगे क्या लिखा है जी, वो सारा मजा ले चुके, सारी ब्लेसिंग्स ले चुके, अब उनका कलाम, मैं नहीं कह रहा खुदा का कलाम क्या कह रहा है, उनका वापस आना क्या है जी। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि वो अपनी तरफ से यीशु को दोबारा मसलूब कर चुके हैं। मसलूब किया और उसके साथ अगला काम, एक और काम किया जी, अलानिया जलील करते हैं। एक कपल मेरे पास आया, बेटी कहती कि अंकल वो क्रिश्चियन हो गया। तो मैं कहा बेटा तो मैं क्या करूं? मैं कहा बेटा फिर मैं क्या करूं? अंकल अच्छी बात नहीं है। तो मैं कहा क्यों, कैसे, किस बात से चेंज हुआ? नहीं वो शादी के लिए क्रिश्चियन हो गया। तो क्या ये समझौता अच्छा है? हरगिज़ नहीं। वो दोबारा क्या करते हैं जी, उसको मसरूफ करके अलानिया जलील करते हैं। और आगे साथ में सुन गया, क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर अब अभी बात, अगर बगैरता हो जाए और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो ना मकबूल और करीब है। आगे क्या लफ्ज लिखा है जी, आगे क्या लिखा है जी, जब बुलंद आवाज के साथ बोलते हैं, जिनके पास कलाम नहीं है वो तो घर ही देख रहे हैं जल्दी से, वो लाती है। जो बगैरता हो जाए खुदा उनको लानिया जलील कर दे, वो क्या है जी, वो लानती है। तो फिर मैं वही कहूंगा, अगर लानत कोई नौजवान लेना चाहता है तो फिर गो हैड यार। बेटियों मैं फिर कहूंगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। दूर के ढोल बड़े अच्छे लगते हैं सब कुछ। मैं आप लोगों का बाप हूं, मैं इसलिए मैं अपनी बेटियों को बड़ी ओपन बातें कर रहा हूं। मेरी बेटियों किसी का व्हाट्सएप पे कह देना बड़ा अच्छा हमें लगता है,
लेकिन अंदर क्या है? तारीकी, अंधेरा, और एंड क्या है? लानत। फैसला फिर वो मेरे अपनों के हाथ में। ये हम लोग सोचते हैं ना कि जो मैंने कहा था, हम लोग इस से कंपनी के शिकार लोग हैं। हर चमकती चीज को देख के हम एकदम पागल हो जाते हैं। किसी दी बड़ी गड्डी देख ली, ਉਹਦੇ पीछे पागल। किसी का पैसा देख लिया, उसको दोस्त बना लिया। वो कोई ताल्लुका तो उसके साथ ताल्लुका बना लिए, उसको घर में कहा बेटा तू चाचू है ताड़ा। एक आयत में से देखिएगा, इब्रानियों का खत आपने निकाला हुआ है, इब्रानियों 13 बाब, और उसकी 5वीं आयत सुनिएगा। 13वां बाब उसकी 5वीं आयत। ज़र की दोस्ती से, ज़र क्या चीज होती है? ज़र क्या चीज होती है? पैसा। ज़र की दोस्ती से क्या रहो जी? खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है, आपके पास क्या है? यीशु। जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। जो कुछ आपके पास है, हमारे पास क्या है? बेटियों आपके पास क्या है? जब बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, बेटियों आपके पास क्या है? उसको थामे रहो और उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने मेरे आपके साथ वायदा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक मैं ताड़े नाला, मैं कभी तुम्हारे से दस्तबरदार ना होऊंगा। तो अभी भी सब कुछ मजा चखने के बावजूद मेरे नौजवान बेटे किसी का आई लव यू देके होते पीछे पागल। इसका एंड कलाम में बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है। सुलेमान बादशाह, खुदा ने उसको क्या दी थी जी? बोलिएगा। अगर किसी को नींद आ रही है, इसको सराहें ताकि उसको नींद आए। क्यों? हमें कौन सी कलाम की जरूरत है? वो है, सोने दे, उसको डिस्टर्ब ना करना। राइट? सुनिएगा, सुलेमान बादशाह जिसको खुदा ने बड़ी हिकमत और दनाई बख्शी, उसने मेरी और आप लोगों की नसीहत के लिए बाइबल मुकद्दस में 3-4 किताबें भी लिखी। इमसाल की किताब, वाइज की किताब, गज़ो गुजरात की किताब, और चंद ज़बूर। वही बात है जो हमने पहली बातें की हैं। आसमानी सारी बरकतों का मजा चखने के बाद सुलेमान बादशाह का एंड क्या हुआ जी? जानते हैं उसका एंड क्या हुआ? निकालिएगा जरा, पहला सलातीन क्योंकि हम इतने सासे कमती के शिकार लोग हैं ना, हम एकदम पसंद करना शुरू कर देते हैं। पहला सलातीन उसका 11वां बाब,
और उसकी पहली आयत से, अगर आप नोट करना चाहते नोट कर लीजिएगा, घर जाके इसको पढ़िएगा। लिखे, और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी, आगे क्या लिखा है जी, अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सिदानी, हित्ती औरतों से क्या करने लगा जी, मोहब्बत करने लगा। और एंड क्या हुआ जी, और ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर है कि तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मार डालेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। आगे क्या लिखा है, और उसके पास 700 शहजादियां और उसकी बीवियां और 300 हरमे में थी, और उसकी बीवियां उसके दिल को क्या किया था जी, उसके दिल को क्या किया जी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी चमकती चीजें सोने लगी हुए बेवकूफ आदमी। क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ क्या किया जी, मार दिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था, क्योंकि सुलेमान सिदानियों की देवी इस्तारात और अम्मोनियों की नफरती मरकूम की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे क्या की जी, बदी की, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। एंड अच्छा निकला, सारी बरकतों का मजा चखने के बाद कलाम क्या कहता है, खुदावंद से नजर में वो नफरत थी, खुदावंद की नजर में ना मकबूल ठहरा, नफरती ठहरा। अब आखिरी बात करने को हूं, क्योंकि मैंने बेटियों को, अपने बेटों को काफी मैंने गुस्सा कर लिया है। अब आगे जरूरी बात है, आखिरी बात, हम वालिदैन की कितनी भरी जिम्मेदारी है, हम वालिदैन की कितनी भरी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को और अपने बेटों को वक्त पर उनकी शादी की जाए। मुझे तो एक और चीज की बड़ी समझ नहीं आती, मैं हकीकत है, मुझे 23 साल हो चुके ये पासबानी खिदमत में, इस चर्च में 23 साल का मैं आपको निचोड़ बताऊं ना, क्योंकि मैं सबके घरों में जाता हूं, 23 साल का निचोड़ बताऊं ना, मैं माफी चाहता हूं। बेटियों से पूछें, हमें कोई पसंद ही नहीं आता। मां बाप से पूछें जो हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। और फिर इसी चक्कर में हम वालिदैन स्टेटस के, क्योंकि हम लोग एहसास कमती के लोग हैं ना शिकार, मसला तो हमारा वही है ना, एहसास कमती के शिकार लोग हैं। कोई शहजादा लबे, कोई शहजादी मिले, तो फिर मैं गुस्से से वही कह रहा हूं, ढूंढते रहो शहजादियां, ढूंढते रहो शहजादे। हमेशा याद रखेगा,
हमेशा याद रखेगा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो वालिदैन हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। दुनिया में आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए कोई आसमान से कोई शहजादा नहीं उतरेगा, कोई शहजादी नहीं उतरेगी। मैं माफी चाहता हूं, मुझे इस तरह के वो रिश्तों के ताल्लुक से ये इस तरह की कि नहीं पादी साहब, वो लड़के वालों का ना कोई वो लड़का बहुत वेल सेटल्ड हो। अब मैं फिर आपका थोड़ा सा हंसाने लगा हूं। अब मुझे बोलिएगा यार 23, 24, 25 साल केड़ा बंदा सेटल्ड हो जाता है? बोलिएगा 23, 24 साल में कौन सा सेटल्ड हो जाता है? अच्छा फिर थोड़ा सा मैं आगे पता, फिर मैं मजाक में पता की कहना, फिर प्यो नहीं कर लो, फिर आखिर वो बुढ़े मेरे आके सेटल्ड हुए ना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। कि नहीं जी वेल सेटल्ड हो, ठीक है, गो अहेड। अच्छी सूरत के पीछे मत भागो, अच्छी सीरत के पीछे भागो, अच्छी सीरत के पीछे भागो। यही काम करते 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 हमारी बेटियों की उम्र ज्यादा, खुद हमने केयर नहीं की, और फिर बाहर का कोई शख्स आके कहेगा आई लव यू, वो कहेगा चंगा है। अब मेरी बेटियों, मैं आपसे भी मुखातिब हूं। जैसे वो जब उनकी एज होती ना, जब उनकी एज होती है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, नहीं मैं इधर ना नहीं करना, नहीं मैं इधर ना नहीं करना, मैं इधर ना नहीं करना, क्योंकि उस टाइम भी जवानी होती है ना, स्टेटस होता है। वो फिर कहती रहती हैं हु इज ही, वो है कौन है, मेरा ब्याह करना चाहता है, हु इज ही, हु इज ही। और फिर ये कहावत बनी हुई है, फिर जो बच्चियों की उम्र ढाल जाए ना, फिर जब उम्र ढाले जाए तो फिर कहने वेयर इज ही, किथे जे, तो फिर एंड भी यही होता है। इसलिए खुदावंद ने जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां डाली हैं उसको पूरा करना, ये हम वालिदैन क्या बहुत एजुकेटेड है। हमारी क्रिश्चियन पाकिस्तान में बहुत क्रिश्चियन बच्चे बड़ी एजुकेटेड है। अफसोस हमारे क्रिश्चियन नौजवान बहुत कम एजुकेटेड हैं। तो इसलिए आपकी बात करके हम दुआ करेंगे। बेटों और बेटियों सुनो, एक बात मैं हमेशा कहता होता हूं, शादी करनी है, शादी बेटा करनी है, पावे हंस के करिए, पावे रो के करिए, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और अच्छी बात है, कलाम भी कहता है ये इज्जत की बात है, ब्याह करना इज्जत की बात है, कलाम ये कहता है। जब मैं कहता हूं जब ब्याह करना है, चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, तो फिर क्यों ना खुदा की मर्जी के मुताबिक करें, तो फिर क्यों ना खुदा की मर्जी के मुताबिक करें। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, शायद आप लोगों के वालिदैन भी यहां बैठे होंगे, उनको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपका रूहानी बाप होने के नाते मैं आपको आज ये कहूंगा, बेटों को भी और बेटियों को भी अपने होने वाले जिंदगी के साथी के लिए दुआ किया करें, हकीकत है दुआ किया करें। खुदा मैं नहीं जानती कि तूने मेरे लिए लाइफ पार्टनर कौन
बहुत सा रखा हुआ है, लेकिन जो भी तूने मेरे रखा हुआ है खुदावन, तू मेरे लिए बेहतरीन जिंदगी का साथी तू मुझे मुहैया कर। आखिरी बात, पक्की फाइनल आखिरी बात, अपनी एग्जांपल देके मैं फिर करेंगे। सुने, 90 में मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी। 90 में मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी। जब मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी ना, मैं रोज ये दुआ करना शुरू हो गया, खुदावन मुझे ऐसी बीवी दें जो कम से कम मुझे तेरी खिदमत से ना रोके, मुझे तेरी खिदमत से ना रोके। आज से 33 साल पहले 93 में बेगम लग गई। खुदावन का शुक्र, अच्छी बेगम लग गई। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ये जो से मेरी दुआओं का जवाब जो सब खुदावन सब कुछ प्लान आउट करता है। जब शादी होकर वापस जब घर आई तो मेरी मां ने मेरा सारा काम आसान कर दिया, मेरी दुआ का जवाब मुझे करवा दिया। मेरी बीवी को पास बुठा के कहा, बेटा तू इनू खिदमत वास्ते आजाद कर दे, जिस तरह मैं इहदे प्यो नू खिदमत वास्ते आजाद कर छड़िया सी। वो दिन, आज का दिन, मैं खिदमत के लिए आजाद हूं। खुदावन मेरे बेटियों, खुदावन दुआओं का जवाब देता है। मैं नहीं जानता कौन आपके लाइफ पार्टनर, कौन सी अच्छी आपकी लाइफ पार्टनर है। मेरी बेटियों, मैं नहीं जानता कि कौन आपका लाइफ पार्टनर है, लेकिन मैं आपके वालिदैन के सामने ही कहूंगा, आपने होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करना शुरू कर दें। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।